اس اعتبار سے کشمیری لیڈر غلام حسین وائی سے بات کرنی ضروری تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، السلام علیکم۔ سوکھی روٹی توڑتے ہوئے کشمیری لیڈر کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس نے حیران سا ہو کر جس طرف سے آواز آئی تھی اس طرف دیکھا۔ میں اسے نظر نہ آیا۔ میں نے کہا، وائی صاحب، میں کوئی غیبی روح نہیں ہوں، میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں اور جہاد کشمیر کا ایک ادنیٰ سپاہی ہوں۔ اگر آپ مجھے یقین دلا دیں کہ آپ مجھے دیکھ کر سراسیمہ نہیں ہوں گے تو میں اپنا آپ تم پر ظاہر کر دوں گا۔ کشمیری لیڈر کے لیے یہ غیبی آواز تھی، کیونکہ میں اسے سانپ کے روپ میں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ابھی تک حیرانی کی کیفیت میں تھا۔ میں نے دوبارہ کہا، وائی صاحب، میں اپنی کمانڈو پارٹی کے ساتھ آپ کو بھارتی درندوں کی قید سے نجات دلانے آیا ہوں۔ کشمیری لیڈر ذرا سنبھل سا گیا۔ اس نے پوچھا، بھائی تم کون ہو؟ کیا تم کوئی فرشتے ہو؟ میں نے کہا، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ تو پھر تم دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ کشمیری لیڈر کی آواز میں نقاہت اور کمزوری تھی۔ اس مجاہد کو بھارتی درندوں نے اذیتیں دے دے کر نیم جان کر دیا ہوا تھا۔ میں نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ میں آپ ہی کی طرح کا ایک انسان ہوں، الحمدللہ مسلمان ہوں، جہاد کشمیر کا کمانڈر ہوں اور صرف آپ کو تلاش کرتا یہاں تک پہنچا ہوں۔ لیکن میرے ساتھ ایک عجیب بات ہو گئی ہے۔ ایک ناخوشگوار حادثے کے بعد میں جادوگر سپیروں کے طلیسم اور ان کے منتروں کے اثر سے انسان سے سانپ بنا دیا گیا ہوں۔ کشمیری لیڈر کے چہرے پر حیرت اور تعجب کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ آہستہ سے بولا، میری سمجھ میں نہیں آیا تم کیا کہتے ہو؟ میں نے دھیمی آواز میں مختصر طور پر کشمیری لیڈر کو اپنی داستان بیان کی اور کہا، اب میں آپ پر اپنا آپ ظاہر کر رہا ہوں اور میں اندھیرے کونے سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ کشمیری لیڈر نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سوکھی روٹی وہیں رکھ دی اور ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا دوست ہوں اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں میرا نام کرمداد ہے اور جہاد کشمیر کا مجاہد ہوں۔ تھوڑی سی گفتگو کے بعد کشمیری لیڈر نے مجھے سانپ کے روپ میں ذہنی طور پر قبول کر لیا۔ ہم بڑی آہستہ آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کشمیری لیڈر سے کہا، میں آپ کو یہاں سے نکال کر لے جانا چاہتا ہوں۔ جنگل میں ہمارا ایک خفیہ ٹھکانہ ہے، آپ کو وہاں چھپا کر میں اپنے ساتھیوں کو اطلاع دینے جاؤں گا اور پھر ہم رات کے اندھیرے میں آپ کو بھوپال لے جائیں گے۔ کشمیری لیڈر نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ میری طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کیا تمہیں ابھی تک یقین نہیں آیا کہ میں انسان ہوں اور عارضی طور پر سانپ کی شکل اختیار کیے ہوئے ہوں؟ کشمیری لیڈر نے کہا، قربان جاؤں میں خدا کی قدرت کے، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ بھائی مجھے یقین نہیں آ رہا، لیکن یقین کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن مجھے یہاں سے نکال کر لے جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں نے کشمیری لیڈر کو مختصر الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ ہماری کمانڈو پارٹی کا پلان کیا ہے۔ جب اس نے وہاں سے میرے ساتھ اکیلے فرار ہونے کی مشکلات کا ذکر کیا تو میں نے کہا، سانپ کی حیثیت سے مجھے کچھ ایسی سہولتیں حاصل ہیں جو ہماری کمانڈو پارٹی کو حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے مجھے یقین ہے کہ میں آپ کو یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ صرف ہمیں رات کا اندھیرا ہو جانے کا انتظار کرنا ہوگا۔ تم مجھے یہ بتا دو کہ کیا رات کے وقت یہاں کوئی سنتری تمہارے لیے کچھ لے کر آتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، ایک سنتری سوکھی روٹی اور چائے کا مگ لے کر آتا ہے۔ میں نے کہا، تم نے یہ بتا کر میرا کام آسان کر دیا ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی دروازے کے باہر لگی چٹخنی نہیں کھول سکتا ہے۔ یہ کام رات کو آنے والا سنتری کرے گا اور وہی وقت ہمارے فرار کا ہوگا۔ کشمیری لیڈر کو ابھی تک میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے میرے پلان کی کامیابی پر شک ہے۔ میں نے کہا، سنتری باہر سے دروازے کو چٹخنی لگا گیا ہے۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ دروازے میں کوئی درز یا سوراخ نہیں ہے کہ جہاں سے میں باہر نکل سکوں۔ ویسے بھی مجھے اکیلا یہاں سے نہیں نکلنا، تمہیں ساتھ لے کر جانا ہے اور اس لیے دروازے کی چٹخنی کا باہر سے کھلنا ضروری ہے اور یہ کام رات کو باہر سے آنے والا سنتری ہی کر سکتا ہے۔ ہمیں رات پڑنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ کشمیری لیڈر آہستہ آہستہ سوکھی روٹی کھا رہا تھا۔ اس نے ٹین کا مگ خالی کر کے ایک طرف رکھ دیا اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے اور وہیں لیٹے ہوئے بولا، کمزوری کی وجہ سے میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا۔ میں نے کہا، تم بے شک آرام کرو، میں کونے میں چھپ جاتا ہوں اور میں ٹارچر سیل کے کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اوپر بیرک میں فوجیوں کی آوازیں آنے لگی۔ کشمیری لیڈر تو اسی طرح فرش پر پڑا رہا، مگر میں ہوشیار ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں اسٹیچر والے ٹارچر سیل میں ایک بھارتی سپاہی کو ڈسایا ہوں اور ان لوگوں کو اس کی لاش کا علم ہو گیا ہوگا اور بہت ممکن ہے کہ وہ سانپ کو مارنے کے لیے اسے ادھر ادھر تلاش کر رہے ہوں، کیونکہ بھارتی سپاہی کی لاش سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے سانپ نے کاٹا ہے۔ پچھلی رات کو بھی میں نے 2 سپاہیوں کو ڈس کر ہلاک کیا تھا اور ان کی لاشیں بھی کیمپ کے فوجیوں کو مل چکی تھی۔ چنانچہ وہ اب یہ چاہتے ہوں گے کہ سانپ کہیں اسی جگہ بیرکوں میں کہیں چھپا ہوا ہے، اسے فوراً ہلاک کر دیا جائے تاکہ وہ کسی اور سپاہی کو نہ کاٹ لے۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ 2 سپاہی دروازہ کھول کر سیڑھیاں اترنے لگے۔ میں تیزی سے دیوار پر چڑھ کر چھت کی کڑیوں میں ایک جگہ چھپ گیا۔ فوجی سپاہیوں نے اندر آ کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک فوجی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں گھاس کاٹنے والا لمبا چھرا ہے۔ کشمیری لیڈر اٹھ کر بیٹھ گیا۔
ایک سپاہی نے کہا یہاں سانپ تو نہیں آیا؟ کشمیری لیڈر نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا۔ دوسرا فوجی سپاہی بولا سانپ آتا تو اس کو ڈس کر مار نہ ڈالتا، چلو باہر جھاڑیوں میں چل کر دیکھتے ہیں۔ پہلا فوجی کہنے لگا دیکھ لیتے ہیں کہیں ادھر ادھر چھپا ہوا نہ ہو۔ وہ سانپ سے ڈر بھی رہے تھے۔ بڑی احتیاط سے کوٹری میں انہوں نے دائیں بائیں دیکھا اور جلدی سے سیڑھیوں کی طرف آ گئے۔ یہاں نہیں ہے، جھاڑیوں میں ہی ہوگا۔ جب وہ باہر نکل گئے اور انہوں نے دروازہ بند کر کے چٹخنی لگا دی تو کشمیری لیڈر نے اس کونے کی طرف دیکھا جہاں میں اس کے سامنے جا کر چھپ گیا تھا۔ میں چھت پر سے اتر کر نیچے آ گیا اور دھیمی آواز میں ساری روایت سنا دی کہ کس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے اس انڈین فوجی کو بیرک میں ڈس کر موت کی نیند سلا دیا تھا جس نے مجھے بجلی کے جھٹکے دیے تھے۔ کشمیری لیڈر میری طرف دیکھتا رہا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک سانپ انسان کی آواز میں کسی سے ہم کلام ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا میں اوپر چھت میں جا کر چھپ گیا تھا۔ میں نے ان سپاہیوں کی آوازیں سن لی تھی۔ میں نے کشمیری لیڈر کو بتا دیا کہ میں کسی بھی وقت سانپ سے اپنی اصلی انسانی شکل میں واپس آ سکتا ہوں۔ اسے میری اس بات پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ وہ اپنی آنکھوں سے یہ سارا ماجرا نہ دیکھ لے۔ میں نے کہا میں چھت پر جا کر ہی چھپ جاتا ہوں، رات ہو جائے گی تو نیچے آ جاؤں گا، تم اپنے آپ کو فرار کے لیے تیار کر لو۔ کشمیری لیڈر پھر بھی کچھ نہ بولا اور میری طرف تکتا رہا۔ میں دیوار پر سے رینگ کر چھت میں جا کر چھپ گیا۔ کشمیری لیڈر اس طرح ٹانگیں سمیٹ کر فرش پر لیٹ گیا۔ دن گزرتا چلا گیا۔ تہہ خانے میں ہونے کی وجہ سے باہر کی آوازیں بہت کم سنائی دیتی تھی۔ کچھ معلوم نہیں تھا کہ باہر دن کتنا گزر گیا ہے۔ جس سنتری نے کشمیری لیڈر کے لیے سوکھی روٹی اور پانی یا گلی سڑی سبزیوں کا سوپ لے کر آنا تھا، بس اسی کی آمد سے ہمیں معلوم ہونا تھا کہ باہر رات ہو گئی ہے، کیونکہ کشمیری لیڈر نے کہا تھا کہ اب سنتری رات کو ہی آئے گا۔ مجھے یہ بھی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اگر خدا نہ کرے میں چھت میں چھپے ہوئے انسانی شکل میں آ گیا تو دھڑام سے نیچے فرش پر گر پڑوں گا اور ہو سکتا ہے میری ٹانگ ٹوٹ جائے۔ پھر خیال آیا کہ میں یکلخت کبھی بھی انسان سے سانپ اور سانپ سے انسان کے روپ میں نہیں آیا۔ پہلے مجھے ہلکے ہلکے جھٹکے ضرور لگتے ہیں، چنانچہ اگر مجھے اس قسم کے جھٹکے لگتے محسوس ہوئے تو میں فوراً چھت سے اتر جاؤں گا، لیکن خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ جب تک میں کشمیری لیڈر کو یہاں سے نکال کر نہیں لے جاتا سانپ ہی بنا رہوں۔ نہ دوپہر کا کچھ پتہ چلا، نہ یہ پتہ چلا کہ باہر شام ہو گئی ہے یا رات پڑ گئی ہے۔ وقت کافی گزر گیا تھا۔ تہہ خانے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں چوکنا ہو گیا اور نیچے دیکھنے لگا۔ سیڑھیوں پر قدموں کی آواز آئی۔ یہ دو بھارتی سپاہی تھے، ایک کے ہاتھ میں ٹین کا مگ اور اس کے اوپر سوکھی روٹی رکھی ہوئی تھی، دوسرے نے اسٹین گن اٹھائی ہوئی تھی۔ اسٹین گن والا فوجی سیڑھیوں کے پاس رک گیا۔ دوسرے فوجی نے مگ اور روٹی کشمیری لیڈر کے ہاتھوں میں دی اور کہا کیمپ کمانڈر صاحب نے کہا ہے آج روٹی چائے کھا لو، صبح تمہیں شوٹ کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور اسٹین گن بردار سپاہی سے کہنے لگا جب تک قیدی راشن کھاتا ہے اس کو گارڈ کرو، یہ ٹین کا ڈبہ توڑ کر خودکشی نہ کر لے، مجھے کمانڈر صاحب کو جا کر رپورٹ کرنی ہے۔ وہ چلا گیا۔ اسٹین گن والا فوجی سیڑھیوں سے ہٹ کر کشمیری لیڈر کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ کشمیری لیڈر سر جھکائے فرش پر بیٹھا آہستہ آہستہ روٹی چبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہلا سپاہی جو باہر گیا تھا اس نے تہہ خانے کا دروازہ ضرور بند کر دیا تھا مگر چٹخنی نہیں لگائی تھی، کیونکہ مجھے چٹخنی لگانے کی آواز نہیں آئی تھی۔ ضرور باہر رات ہو گئی ہوگی۔ اب مجھے اپنا کمانڈو آپریشن شروع کرنا تھا۔ وقت زیادہ نہیں تھا۔ میں نے چھت کی کڑیوں میں سے انڈین فوجی کو دیکھا۔ پہلے تو وہ کشمیری لیڈر کے ارد گرد ٹہلتا رہا، پھر اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اسے غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ پوزیشن میں آ جائے۔ میں چھت کی کڑیوں میں رینگ رینگ کر اس کے عقب میں دیوار کے پاس آ گیا، پھر بڑے آرام سے رینگتا ہوا دیوار سے اتر کر فرش پر آ گیا۔ میں نے ٹارگٹ پر حملے کا سارا نقشہ ذہن میں بنا لیا ہوا تھا۔ میں بھارتی سپاہی کی طرف اس کے عقب میں آگے بڑھا۔ وہ اسی طرح اسٹین گن ہاتھ میں لیے کھڑا کشمیری لیڈر کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کیوں دوسروں کی خاطر اپنی جان گنواتے ہو؟ صبح صبح تمہیں گولی مار دی جائے گی۔ کیمپ کمانڈر کو اپنے ساتھیوں کے نام پتے بتا دو، نہیں تو مجھے ہی بتا دو، تمہاری جان بچ جائے گی۔ کشمیری لیڈر نے کوئی جواب نہ دیا اور آہستہ آہستہ روٹی چبا کر نگلنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر وہ چائے پینے لگا۔ اس دوران میں فرش پر رینگتا ہوا بھارتی سپاہی فوجی کے بوٹوں کے پاس پہنچ گیا۔ میں اسے پتلون کے اندر جا کر پنڈلی پر ڈسنا چاہتا تھا۔ میں اس کے فوجی بوٹوں پر چڑھ گیا۔ کشمیری لیڈر مجھے برابر دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا۔ فوجی سپاہی کے بوٹ اتنے بھاری تھے کہ اسے سانپ کے چھڑنے اور رینگنے کا بالکل احساس نہ ہوا۔ اس کی پتلون کا پائنچہ میرے اوپر تھا۔ آدھی پنڈلی خاکی رنگ کی موٹی جرابوں میں چھپی ہوئی تھی۔ یہ اونی جرابیں تھیں اور میرے دانت ان میں سے گزر کر فوجی کی پنڈلی میں کھب سکتے تھے۔ میں نے ایک لمحہ بھی اب ضائع نہ کیا اور بجلی جیسی تیزی سے اس کی پنڈلی پر ڈس دیا۔ ڈسا بھی اتنی شدت
शिद्दत से कि ज़रूरत से ज़्यादा जहर इसके खून में शामिल कर दिया। मैंने देखा कि मेरे जहर का पहला असर ये होता था कि आदमी का सारा बदन सुन्न हो जाता था, वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकता था, इसके साथ ही वो गिर पड़ता था और इसकी नाक और मुंह से खून जारी हो जाता था। इसके बाद जिस्म फटने लगता था। इस इंडियन फौजी के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये गनीमत हुई कि वो कश्मीरी लीडर के ऊपर नहीं गिरा बल्कि पहलू की तरफ गिरा। मैंने कश्मीरी लीडर से कहा, गुलाम हुसैन स्टेन गन उठा लो, मैं तुम्हारे कंधे पर आ रहा हूँ। कश्मीरी लीडर जल्दी से उठा। इसने फर्श पर गिरे हुए भारतीय फौजी की स्टेन गन उठा ली। मैं फौजी की पतलून से बाहर आ गया। मैं उछल कर कश्मीरी लीडर के कंधे से चिमट गया। वो जरा घबराया। मैंने कहा, घबराओ नहीं और जल्दी से ऊपर चलो, फिक्र न करो, मैं सांप होने की वजह से अंधेरे में देख सकता हूँ। तुम्हें जिधर चलने को कहूँ इधर को ही चलना। कश्मीरी लीडर कोई अनाड़ी नहीं था, बाकायदा तरबियत याफ्ता कमांडो था और मकबूजा कश्मीर के महाज पर इंडियन आर्मी के साथ लड़ चुका था। रिहाई का सुनहरी मौका देखकर इसमें बहुत सी ताकत आ गई। आहिस्ता से बोला, ऐसा ही करूंगा, फिक्र की बात नहीं। वो स्टेन गन हाथों में पकड़े तहखाने की सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे के पास आकर रुक गया। मैंने सरगोशी में कहा, दरवाजे को जरा साहब बाहर को धकेलो। इसने ऐसा ही किया। मैंने कहा, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, तुम इसी जगह छुप कर बैठ जाओ। वो वहीं सीढ़ियों में बैठ गया। मैं इसके कंधे से उतरा और जरा से खुले दरवाजे में से बाहर निकल गया। बाहर रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। कुछ फासले पर दोनों बैरकों की बत्तियां रोशन थी। क्वार्टर गार्ड और लंगर खाने की भी रोशनी हो रही थी। किसी फौजी गाड़ी का इंजन एकदम स्टार्ट हुआ और फिर अपने आप रुक गया। मैंने वापस आकर कश्मीरी लीडर को साथ लिया और इसे बैरक में से निकाल कर दीवार के अकब में ले आया। बाहर कोई संतरी नहीं था। शायद वही संतरी गार्ड ड्यूटी पर था जिसको मैंने तहखाने में हलाक कर डाला था। इसको तहखाने के बाहर गार्ड ड्यूटी पर वापस आना था। बैरकों के पीछे जो दरख्त और झाड़ियां थी वहां अंधेरा था। मैंने कश्मीरी लीडर से कहा, इन दरख्तों में सामने की तरफ चलना शुरू करो। इसने ऐसा ही किया। वो स्टेन गन पोजीशन में किए तजुर्बेकार सिपाहियों की तरह झुक झुक कर कदम कदम चल रहा था। मैं इसे इसी तरह चलता हुआ खारदार तारों वाली दीवार के पास ले आया। जाहिर है इसके पास तार काटने वाला कोई औजार नहीं था और मैं इसे खारदार बाड़ में से नहीं निकाल सकता था। मेरा टारगेट फौजी कैंप का गेट था। सिर्फ इस गेट में से इसे बाहर निकाल सकता था। वहां से बाहर निकलने की कोई दूसरी जगह नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था। और इस फौजी कैंप के गेट से एक खतरनाक ज़ेरे हिरासत कश्मीरी मुजाहिद का निकल जाना कोई आसान काम नहीं था। हर कदम पर इसकी मौत का खतरा था। मैं ये देख चुका था और हमें रैकी के दौरान मालूम हो चुका था कि इस फौजी कैंप में रात को सिर्फ एक संतरी पहरा देता है। इसकी वजह यह थी कि ये कोई बाकायदा फौजी कैंप नहीं था, ये एक भारतीय फौजी टॉर्चर सेल था जिसकी हिफाजत और मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से इंट्रोगेशन और टॉर्चर के अमल को जारी रखने के लिए पूना हारिस की एक इंडियन प्लाटून तैनात की हुई थी। चुनाचा गेट पर सख्त सिक्योरिटी की ज़रूरत महसूस नहीं की गई थी। गेट पर कोई गार्ड रूम भी नहीं था। छोटा सा एक खोखा एक तरफ बना हुआ था जहां गार्ड संतरी बारिश के वक्त आ जाता था, लेकिन क्वार्टर गार्ड वहां से चंद कदमों के फासले पर ही था। और अगर मुझसे ज़रा सी बेहतियाती हो जाती है तो संतरी गार्ड फायर करके सारे कैंप को अलर्ट कर सकता था और हमें घेरे में लिया जा सकता था। स्टेन गन का मैगजीन ज़्यादा देर तक कश्मीरी लीडर का साथ नहीं दे सकता था। ये सारे हकाइक मेरे जहन में थे और मुझे एक एक कदम सोच समझ कर उठाना था। मैं कश्मीरी लीडर के कंधे से चिमटा हुआ था और सर उठा कर सामने बड़े गौर से देख रहा था। चूंकि मुझे अंधेरे में एक एक चीज़ एक एक दरख्त साफ नज़र आ रहा था, इसलिए मैं कश्मीरी लीडर को बड़ी अच्छी तरह गाइड कर रहा था। हम खारदार तारों के बिल्कुल साथ साथ जा रहे थे। कश्मीरी लीडर झुककर चल रहा था। कैंप के गेट के करीब पहुंचकर मैंने कश्मीरी लीडर से कहा, यहाँ झाड़ियों में बैठ जा, मैं आगे जाकर देखता हूँ, कुछ भी हो जाए फायर मत करना। मैं खारदार तारों के साथ साथ रिंगता गेट के पास आ गया। मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं देख सकता था। गार्ड ड्यूटी पर जो संतरी था वो बंद गेट के आगे टहल रहा था। ये गेट जमीन से 3-4 फीट ऊंचा था और 500 गुआड़े तिरछे लगाकर बनाया गया था। ये कोई बाकायदा दरवाज़ा नहीं था, महज रुकावट के तौर पर लगाया गया था। चारों तरफ मैंने निगाहें दौड़ाई। सिर्फ क्वार्टर गार्ड के पास 2 फौजी खड़े बातें कर रहे थे। इनके वहां से जाने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वो बैरकों की तरफ चल दिए। अब मेरी सारी तवज्जो गेट के संतरी की तरफ थी। मैं इसको बड़े गौर से देख रहा था। ये मेरा टारगेट था, इस पर मुझे हमला करना था। वो किसी जगह रुकता नहीं था। चंद कदम चलकर गेट के इस तरफ आता था, फिर टहलता हुआ गेट के दूसरी तरफ चला जाता था। स्टेन गन इसने कांधे से लटकाई हुई थी। मुझे सिर्फ यही टारगेट मारना था। आगे रास्ता साफ था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं कश्मीरी लीडर को इतनी जल्दी टॉर्चर सेल से निकाल कर ले आया हूँ।
तहखाने में इंडियन सिपाही की लाश पड़ी थी। इसकी खबर सुबह ही किसी को हो सकती थी। ये भी हो सकता था कि किसी को ख्याल आ जाए कि फला जवान ज़ेरे हिरासत कैदी का खाना लेकर गया था, अभी तक वापस क्यों नहीं आया। अगर अब तक किसी को खबर नहीं हुई थी तो दिन निकलने पर ही लाश मिल सकती थी। लाश की मुझे ज़्यादा फिक्र इसलिए नहीं थी कि इसे भी सांप ने ही काटा था और इस लाश को भी सांप के खाते में ही पड़ना था। मैं रेंगता हुआ अंधेरे में से होकर गेट के पीछे आया और गेट पर जो आड़े तिरछे बांस लगे हुए थे इन पर चढ़ गया। मैं ऐसी पोजीशन में बैठ गया कि जहाँ से मैं करीब से गुजरते हुए संतरी पर आसानी से हमला कर सकता था। संतरी टहलता हुआ गेट के एक तरफ गया, वहाँ थोड़ी देर के लिए रुक गया। खुदा जाने वो क्या कर रहा था, कभी झुककर ज़मीन पर देखता, कभी वर्दी की जेब को टटोलता। मैं दिल में इसे बुरा भला कहने लगा कि कम वक्त इतनी देर क्यों लगा रहा है। आखिर वो वापस मुड़ा, आराम आराम से टहलता। जैसे ही मेरे करीब से गुजर कर एक कदम आगे हुआ, मैंने इसकी गर्दन पर छलांग लगा दी। मुझे सिर्फ इतना कमाल दिखाना था कि इससे पहले कि संतरी की आवाज़ निकले या वो हाथ ऊपर करके मुझे गर्दन से झाड़े या अलग करने की कोशिश करे, इस वक्त तक मैं अपना काम कर लूँ। मैंने ऐसा ही किया। कुछ मुझे इस एक्शन का तजुर्बा भी हो चुका था। भारतीय संतरी की गर्दन से चिमटा और इसकी गर्दन पर डसना, ये दोनों काम एक ही वक्त में हो गए। गले पर डसने का एक फ़ायदा ये हुआ कि सबसे पहले इसकी आवाज़ बंद हो गई। मैं अभी तक इसकी गर्दन से ही चिमटा हुआ था, इसके जिस्म ने लरज़ना शुरू कर दिया था। मुझे आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि इसका जिस्म इतनी शिद्दत से क्यों लरज़ा था। वो लरज़ते हुए एक तरफ को घूम गया। मैंने इसकी गर्दन से नीचे छलांग लगा दी। वो ज़मीन पर गिर पड़ा और ज़मीन पर ही लरज़ने लगा। मैं इसे देख रहा था, फिर इसका जिस्म साकित हो गया। मैं तेज़ी से इसके मुंह के पास गया। इसका सांस बंद हो चुका था। इस काम से फारिग होते ही मैं जल्दी इस झाड़ी के पास गया जहाँ कश्मीरी लीडर स्टेनगन लिए बैठा अंधेरे में गेट की तरफ देख रहा था। इसको मैं नज़र नहीं आया। मैंने करीब जाकर आहिस्ता से कहा, संतरी मर चुका है, आ जाओ। वो उठने लगा तो मैंने इसे सख्ती से कहा, गुलाम हुसैन झुककर चलो, वाटर गार्ड का संतरी देख लेगा, गेट पर से इसी तरह कूद जाना, चलो। मैं उछल कर इसके कांधे से चिमट गया। कश्मीरी लीडर ने गार्ड संतरी को गिरते देख लिया था। वो तेज़ कदम उठाता झुककर चलता गेट के पास आकर बैठ गया। मैंने आहिस्ता से कहा, बैठने का वक्त नहीं है गुलाम हुसैन, गेट पर से कूद जाओ। वो उठा और गेट के ऊपर से बाहर की तरफ कूद गया। मैंने कहा, बाएं जानिब अंधेरे में भाग चलो। वो इसी जानिब भाग खड़ा हुआ। वो झाड़ियों और दरख्तों के दरमियान अंधेरे में दौड़ता चला जा रहा था। मैं इसके कांधे से चिमटा हुआ था, अंधेरे में इसकी रहनुमाई कर रहा था और कहता जा रहा था, अब बाएं जानिब मुड़ जाओ, अब दाएं जानिब मुड़ जाओ। क्योंकि मुझे सारे रास्ते का इल्म था। हम दरख्तों में से निकलकर ऊंचे नीचे छोटे छोटे टीलों में आ गए। ये टीले नहीं थे, वहाँ से ज़मीन ऊंची नीची थी। मैंने इसे कहा, गुलाम हुसैन थकना बिल्कुल नहीं, तुम्हें कम से कम आधे घंटे तक दौड़ते चले जाना है। इसका सांस फूल गया था। भारतीय दरिंदों ने इसे इस कदर अजियतें दी थी, इतना टॉर्चर किया था और इतने फाके कराए थे कि इसके जिस्म की आधी ताकत ज़ाया हो गई थी। फिर भी इसने कहा, फिक्र न करो, मैं अल्लाह का सिपाही हूँ, अल्लाह मेरी मदद करेगा। वो दौड़ता चला जा रहा था। क्योंकि वहाँ झाड़ियाँ ज़्यादा गुंजान नहीं थी और पगडंडियाँ सी बनी हुई थी। ये पगडंडियाँ मुझे अंधेरे में साफ नज़र आ रही थी। मैं इन पर दौड़ रहा था। मैं चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके हम फौजी कैंप से दूर निकल जाएं, क्योंकि गार्ड संतरी की लाश मिलने पर वहाँ हंगामी सूरत हाल पैदा हो सकती थी। जब मैंने महसूस किया कि वो बहुत ज़्यादा हाँफने लगा है तो मैंने इसे कहा, गुलाम हुसैन थोड़ी देर रुक जाओ। वो वहीं बैठ गया। स्टेनगन इसने ज़मीन पर रख दी। मैंने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ 2 मिनट देता हूँ, इतनी देर तुम सांस ले लो, मैं पीछे जाकर देखता हूँ कि कोई हमारा ताक़ुब तो नहीं कर रहा है। मैं इसके कांधे से उतर कर अकब में टीलों की तरफ निकल गया। मैंने 2 मिनट तक करीब का इलाका अच्छी तरह से देख लिया। वहाँ कोई नहीं था। कैंप की रोशनियाँ टीले की ओट में हो गई थी। मैं जल्दी कश्मीरी लीडर के पास आ गया। इसका सांस कुछ दुरुस्त हो गया। मैंने जाते ही कहा, पीछे सब ठीक है, अब चल पड़ो। मैं इसके कांधे पर आ गया। कश्मीरी लीडर ने उठते हुए पूछा, तुम्हारी कमांडो पार्टी का हाइड आउट कितनी दूर है? मैंने कहा, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ हमारी पार्टी का शायद ही कोई आदमी हो, लेकिन मैं हाइड आउट चेक ज़रूर करना चाहता हूँ। अब दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रा तेज़ चलो। सामने जो दरख्त हैं इनके मयान से होते हुए दाएं जानिब मुड़ जाना, आगे एक छोटी नदी आएगी। वो तेज़ चलता जा रहा था। मैं अपनी नज़रों से इसे रास्ता दिखा रहा था। दरख्तों में से गुजरने के बाद नदी आ गई। हमारी कमांडो पार्टी इसी नदी के छोटे से पुल से गुजरकर फौजी कैंप की तरफ गई थी। इस नदी को देखकर मेरी भी तसल्ली हो गई कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। हमने नदी पार कर ली और सामने वाले जंगल में दाखिल हो गए। कश्मीरी लीडर ने कहा, यहाँ बड़ा अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने कहा, तुम्हारी तरफ से मैं देख रहा हूँ, कदम उठाओ, सामने झाड़ियाँ ही हैं, इनके दरमियान से गुजरते जाओ। इसने ऐसा ही किया। ये जंगल वाकई बड़ा ख़तरनाक था।
झाड़ियों के बाद दरख्त एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि गुजरना मुश्किल था। मुझे एहसास हुआ कि मैं कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया, लेकिन एक जगह मुझे सुतून की तरह ऊपर को उठी हुई एक काली चट्टान नजर आ गई। ये चट्टान हमारी कमांडो पार्टी को भी मिली थी और हम इसके करीब से गुजरे थे। मेरा एतमाद बहाल हो गया। अब मुझे याद आ गया कि हमारा खुफिया हाइड आउट इस जंगल के दूसरे किनारे पर था। कुछ टीले एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ थे। हमने ये घना जंगल करीबन आधे घंटे में तय किया। ये धड़का भी मुझे लगा था कि किसी तरफ से कोई जंगली दरिंदा न निकल आए। इन जंगलों में शेर और चीते कसरत से पाए जाते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र रहा रास्ते में कोई शेर चीता न मिला और हम अपने हाइड आउट के पास आ गए। दो टीले बिल्कुल साथ साथ खड़े थे। एक की ढलान खत्म होती थी तो दूसरे टीले की चढ़ाई शुरू हो जाती। इनके पीछे एक जगह कमांडो खालिद और इसके साथियों ने खुफिया ठिकाना बना रखा था। मैं वहाँ इनके साथ आ चुका था। जब हम खुफिया ठिकाने में दाखिल हुए तो वो खाली पड़ा था, वहाँ कोई भी नहीं था। कश्मीरी लीडर बैठ गया, कहने लगा, यहाँ तो कोई नहीं है। मैंने इसे बताया कि कमांडो पार्टी मेरा 2 दिन इंतज़ार करने के बाद तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक यहाँ से भोपाल रवाना हो गई है। वो कहने लगा, भोपाल तो यहाँ से काफ़ी दूर होगा। मैंने कहा, इतनी दूर भी नहीं है, आगे एक कस्बा है जहाँ से लारियाँ और यक्के भोपाल की तरफ जाते हैं, मगर हम इस तरफ नहीं जाएंगे। तो फिर भोपाल कैसे पहुँचेंगे, इसने पूछा। मैं खुद यही सोच रहा हूँ। मैंने कुछ देर गौर किया और फिर कहा, गुलाम हुसैन, मेरा ख्याल है हमें कस्बे की तरफ ही निकल जाना चाहिए। अगर हमने देर कर दी और फौजी कैंप में तुम्हारी फरार का कैंप कमांडर को इल्म हो गया तो फिर हमारा भोपाल पहुंचना नामुमकिन होगा। कैंप की पलटन इस इलाके को घेरे में ले लेगी। वो उठ खड़ा हुआ, तो फिर देर न करो करमदाद, अभी निकल चलते हैं। हमने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया था, हमें ऐसा ही करना चाहिए था। हम इसी वक्त खुफिया ठिकाने से निकलकर कस्बे की सिमत रवाना हो गए। जंगल ख़त्म हो गया था और ऊंचा नीचा मैदानी इलाका और खेत शुरू हो गए थे। हम मैदानों को अबूर करके खेतों में से गुजरने लगे। कुछ देर रुकने के बाद दूर से कस्बे की टिमटिमाती रोशनियां दिखाई देने लगी। कस्बे में जाकर मालूम हुआ कि अभी रात के 11 भी नहीं बजे। मुश्किल ये पेश आई कि कश्मीरी लीडर के पास लारी का किराया नहीं था। इसका हुलिया भी मफरूर कैदियों वाला था। मैं सांप की शक्ल में था। कस्बे के बाहर एक जगह एक लारी खड़ी थी जिसमें कुछ मुसाफिर बैठे हुए थे और ऊपर सामान लदा हुआ था। मैंने गुलाम हुसैन से कहा, वहाँ चलकर किसी से पूछो कि ये लारी कहाँ जा रही है, बस तुम सिर्फ इतना ही पूछना, आगे कोई बात न करना। वो लारी के पास आ गया। एक हिंदू लाला जिसने हिंदू लालों की तरह धोती बांध रखी थी, लारी के आगे ड्राइवर के पास खड़ा इससे बातें कर रहा था। कश्मीरी लीडर एक तरफ खड़ा हो गया। लाला ड्राइवर से कह रहा था, भोपाल जाते ही गंगा देवी से कहना कि मेरी तरफ से भगवान शिव के मंदिर में 5 सेर लड्डू पुजारियों को खुद जाकर दे आए और लारी तेज मत चलाना। अभी मैंने इसकी इंश्योरेंस नहीं करवाई, समझ गए। ड्राइवर ने बेड़ी का कश लगाकर कहा, समझ गया मालिक, बस 2-4 मिनट सवारियों को देख लो, ना मिले तो चल पड़ना, ज़्यादा रात हो जाएगी। मैं समझ गया कि ये लाला इस लारी का मालिक है और ये लारी भोपाल जा रही है। लाला लारी से हटकर अड्डे की तरफ जाने लगा तो कश्मीरी लीडर से पूछा, क्या बात है जी, भोपाल जाना है तो बैठ जाओ लारी में। मैंने इंसानी आवाज़ में लाला से कहा, ओम नमः शिवाय। लाला, ये आदमी मेरा भगत है, मैं शिवजी महाराज का सांप हूँ। और ये कहकर मैंने कश्मीरी लीडर के कंधे पर बैठे बैठे अपना फन फैला लिया। लाला इस वक्त लारी से कुछ 6-7 कदम के फासले पर जरा अंधेरे में था। लारी का ड्राइवर लारी के दूसरी जानिब खड़ा अपने क्लीनर से बातें कर रहा था। लाला ने एक आदमी के कंधे पर फनदार सांप को देखा तो थर थर कांपने लगा। मैंने कहा, डरो नहीं बालक, मुझे मालूम है कि तुम भी शिवजी महाराज के भगत हो। मुझे शिवजी ने तुम्हारे पास ये पैगाम देकर भेजा है कि हमारे इस भगत को अपनी लारी में भोपाल पहुंचा दो। मेरे लिए ये अदाकारी करनी कोई मुश्किल नहीं थी, मैं ऐसा बड़ी आसानी से कर सकता था। मैं सांप की शक्ल में था, मैं इंसानों की आवाज़ में बातें कर सकता था और ये मुझे अच्छी तरह मालूम था कि हिंदू शिवजी महाराज को भगवान का रूप मानते हैं और शिवजी महाराज के सर पर हमेशा एक सांप जट्टाओं में फन खोले बैठा रहता है। हिंदू लाला तो हाथ जोड़ने लगा, बोला, महाराज मेरे धन भाग कि मैं शिवजी महाराज के भक्तों की कोई सेवा करूं। मैंने कहा, ये बात किसी को मत बताना कि तुमने शिवजी महाराज के नाक से बातें की थी। लाला थरथराती आवाज़ में बोला, महाराज मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगा, पधारिए महाराज। इसने कश्मीरी लीडर के आगे हाथ बांध कर कहा। मैंने कश्मीरी लीडर से कहा, शिवजी के भगत, हमने अपना वचन पूरा कर दिया, लाला जी की लारी में बैठकर भोपाल पहुंच जाओ, चलो। कश्मीरी लीडर गुलाम हुसैन ने इस किस्म के मुकालमे भला पहले कहाँ सुने होंगे। वो एक बामल मुजाहिद था और दुश्मन से जंग कर रहा था। हैरान होकर हमारी बातें सुनता रहा। जब मैंने इसे लारी में सवार होने को कहा तो वो जल्दी से लारी की तरफ चल पड़ा। लाला जी इसके आगे आगे थे। लाला जी ने जाते ही ड्राइवर से कहा, मुल्की दास, ये हमारे मेहमान हैं, ख़ास मेहमान हैं, इन्हें बड़े आराम से अपने साथ बिठा कर भोपाल पहुंचा दो।
ड्राइवर बोला, मगर लाला जी फ्रंट सीट तो बुक हो चुकी है। लाला जी ने इसे डांटते हुए कहा, जिसकी सीट है इसको पैसे वापस कर दो, मेरे मेहमान को फ्रंट सीट पर बिठाओ। ड्राइवर ने बहुत अच्छा लाला जी कहकर कश्मीरी लीडर से कहा, आ जाओ जी। मैं इस दौरान कश्मीरी लीडर की कमीज़ के अंदर छुप गया था। कश्मीरी लीडर फ्रंट सीट पर बैठ गया। लाला जी हाथ बांधे करीब आकर बोला, महाराज मुझे कोई सेवा बताएं। कश्मीरी लीडर ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ड्राइवर ने लारी स्टार्ट कर दी। जिस वक्त हम भोपाल पहुंचे रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। लारी अड्डे पर कश्मीरी लीडर उतर गया। मैंने इसे कहा, जिस तरफ मैं कहूँ इस तरफ चलते जाना। ये इलाका मेरा देखा बाला था। रात की तारीकी मेरी निगाहों में हायल नहीं हो रही थी। मैं इसे शहर से बाहर बालादरी के खंडर पर ले आया। यहाँ से कमांडो खालिद की कमीनगाह ज़्यादा दूर नहीं थी। जैसे ही हम कमीनगाह के पास आए तो आदमियों ने अंधेरे से निकलकर कश्मीरी लीडर को घेर लिया। कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम? मैंने अंधेरे में इन लोगों को पहचान लिया। ये हमारी कमांडो पार्टी के जवान थे। इनमें कमांडो अरशद भी था। इन लोगों ने मुझे शाम के रूप में देखा हुआ था। मैं जल्दी से कश्मीरी लीडर की कमीज से निकलकर इसके कांधे पर आ गया और इंसानी आवाज़ में कहा, मैं करमदाद हूँ, ये कश्मीरी लीडर गुलाम हुसैन है। कमांडो अरशद ने स्टेन गन नीचे कर ली और कहा, खुदा का शुक्र है तुम लोग खैरियत से पहुँच गए। अंदर आ जाओ, कमांडो खालिद हुजरे में ही है। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।